I thank Mrs. Vijayalakshmi Kannan profusely for having given us a wonderful talk in Hindi about Chaitra Navratri. Before that, I would like to mention certain things about Navratris. Navratri is observed 4 times a year during different seasons. Each one is significant in its own way. In all these, Goddess Durga is worshipped. The 4 Navratris are according to our Hindu seasons and the months they fall in. Like during the winter season, it is Magha Navratri. During spring, it is Chaitra Navratri. During monsoon, it is Ashadha Navratri. And Sharad Navratri during autumn. So, this Chaitra Navratri signifies the end of spring and the starting of summer. And during this time, the devotees worship the 9 forms of Goddess Shakti in the form of Durga, Shailaputri, Brahmacharini, Chandrakanta, Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri, and Siddhidatri, etc. According to our mythology, Goddess Durga had descended from heaven to visit her maternal home and to spend time with the devotees. So, the devotees observe fast and they do pujas and they recite the Devi Stotras during the 9 day. It's also called Vasant Navratri or Ram Navratri, as the 9th day marks the birth of Lord Rama. This year's Chaitra Navratri begins on April 2nd and ends on April 11th. This Navratri had been a long-standing tradition for all of us with a great amount of religious value attached to it. In these great 9 days, festival celebrated with a great enthusiasm in northern India. It is celebrated during the Shukla Paksha of Chaitra Masa, which is between March and April. Maharashtrians celebrate the first day of Navratri as Gudi Padwa, as we already seen, and in Kashmir it is called Navre. So this Navratri is celebrated in northern and western India and makes the colorful spring season all the more fascinating the divine. Chaitra means beginning of a new year. So the new year begins with 9 days of turning inwards, meditation and chanting. Recognize the divinity in the whole creation and then thinking about the Shakti which activates all of us. Normally the women fast during this Navratri, and some of the food items which they take is sabudana khichdi, some banana chips sometimes, or chawal ka dokla, or banana kebab and paneer rolls, kuttu ki puri, etc. Sometimes arbi kofta with mint and yogurt dip. That is, they avoid the grains during this Navratri time. Now let us hear Mrs. Vijayalakshmi Kannan. Thank you, ma'am. चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक को प्रणाम। मैं विजयलक्ष्मी कन्नन हूँ। मैं मद्रास में रहती हूँ। मेरा बहुत शौक़ है कविता लिखने में और विभिन्न माध्यमों के साथ पेंटिंग करना भी बहुत मनपसंद है। मैं अभिभाषक भी हूँ। मुझे प्रकृति और सौंदर्य से बहुत ही प्यार है। भारत भूमि की ये विशेषता है कि हमारे बीच में अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है। इतने सारे धर्म, त्योहार और उत्सव और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा दुनिया में। कुछ राज्यों में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, कुछ उगादी कहते हैं, अन्य क्षेत्रों में ये नवरात्रि भी है, लेकिन सभी का मतलब खुशी और समृद्धि। इसे हम बसंत नवरात्रि कहते हैं। चैत्र हिंदू कैलेंडर की पहला महीना है। तमिल में तो हम इसे चित्रै कहते हैं। अमावस्या के बाद तमिल और मलयालम क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी के लिए नया महीना शुरू होता है। केरल में ये विशु कहते हैं। हालांकि 4 नवरात्रि 4 मौसमों का अंतर करने के लिए है। उनमें से
भारतवर्ष में लगभग सब जगह में 2 नवरात्रियां खुशियों से मनाई जाती है। एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरी है शरद नवरात्रि। उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार चैत्र नवरात्रि है। ये बहुत ही भव्य उत्सव है। नवरात्रि के चैत्र मास शुक्ल पक्ष कैलेंडर की शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है, जो मार्च और अप्रैल के बीच होता है। महाराष्ट्र में इसे नवरात्रि से पहले जिनको गुड़ी पड़वा कहते हैं, और कश्मीर में इसे नवरेह कहता है। यह नवरात्रि उत्तरी और पश्चिमी भारत में धूमधाम से मनाई जाती है और रंगीन बसंत ऋतु को और भी अधिक आकर्षक और रंगीन बनाया जाता है। चैत्र का अर्थ एक है कि नया साल की शुरू, तो नव वर्ष की शुरू तो दिनों अंतर्यामी होता, अंतर में घुसना, अपने खोजना, मुड़ के देखना, उसके साथ प्रार्थना, ध्यान, जप इसी के साथ होता है। अपने को पहचानना और उस पहलू को जीवित रखना। 9 दिनों माँ दुर्गा की पूजा होती है अलग अलग रूपों में, और 9 अलग अलग रंगों की पोशाक में माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आज का दिन दूसरा दिन है 9 दिनों में, और माँ की रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ कठोर तपस में है और बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में माला, जपमाला। चैत्र नवरात्रि में एक संध्या पूजा भी करते हैं, संधि पूजा। वो बहुत ही विशेष पूजा है माँ को प्रसन्न करने के लिए। चैत्र नवरात्रि रामनवमी से समाप्त होती है, तो हिंदू भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम का है, उनका जन्मदिन। नवरात्रि के दौरान लोग शराब और मांसी ये सब खाना पीना भी छोड़ते हैं और प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो चूँकि ये नवरात्रि भगवान राम के जन्म से जुड़ी हुई है, इसलिए राम के जन्म, वनवास और जीवन के अन्य पहलुओं से जुड़े हुए स्थानों में बहुत ही सजाया कर जाता है और स्थानों पर भगवान की पूजा करते हैं। जिन प्रमुख स्थानों पर ये चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है उसे उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, दक्षिण तमिलनाडु में रामेश्वरम है, तेलंगाना में भद्राचलम और बिहार में सिद्धामढ़ी। माता को हमेशा पृथ्वी से जोड़ते हैं और इसलिए हम उनका प्रकृति के रूप में भी पूजा करते हैं। ये बसंत ऋतु हमेशा हरी, लाल मिट्टी, फूलों और फलों से भरी होती है, जो सभी प्रजातियों को जीवन को संतुष्ट और ऊर्जावान बनाती है। वह ब्रह्मचारिणी अपने बाएं हाथ में एक माला और दाएं हाथ में एक कमंड रखती है, जो सफेद या हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए है। वह भगवान मंगल सभी भाग्य को देवता का नियंत्रित करती है। आइए हम सभी दुर्गा की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा एक छोटी सी कविता है, वो मैं जरा पढ़ लूँ। फूलों के मुस्कान में नजर आती माँ तुम्हारी हंसमुख, फलों के स्वाद में माँ तुम्हारी मधुरता। माँ बुद्धि हो, भक्ति हो, शक्ति हो, धरती हो, शामिल हो सब कुछ में, प्यार से मुस्कुराते हैं हम तुम्हारे बच्चे। आज इसे मैं एक पावन मुहूर्त समझती हूँ
आप सबको मेरा शुभकामनाएं और नए साल की बहुत ही अच्छी मुबारक हो। सब कोई जगह में समृद्धि और संतुष्टि से भरे जीवन काटे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी कविता और भाषण बहुत खूबसूरत है मैम। धन्यवाद। बधाई हो।